Good evening, students. Students, many of you have asked this question again and again: how to prepare for an interview and how we can face it, how we can crack it. Yes, definitely. Interviews always an area where students are most of the time fearful, fever. They are not confident and they fear a lot. Interview where you are being selected or you may be rejected. That's why interview is a very important point for jobs or for any other areas. Got it? So many of you are fearful about interviews. Many of you fear because so many people are going to face an interview and many are being selected, many are being rejected. And always the selection is very less and rejection is very much. So if you want to be selected, how you should prepare for it, how you should try for it, how you should face it, what are the important steps you should follow. And if you don't have so much of time, then how you can prepare it, how you can do it in a best way in limited time. So today in our session, I'm going to tell you in detail. I will use both the language Hindi and English for people who understand either Hindi or English. So इंटरव्यू को कैसे फेस करें ये बहुत लोगों के लिए चैलेंज है और बहुत लोग डरते हैं जिसके कारण वो दूसरे जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते या वो दूसरे एरिया में जाते नहीं या कई बार वो डर जाते हैं और इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं डेफिनेटली जो अच्छा इंटरव्यू फेस करेगा उसका चांसेस अच्छा ही होगा बेटर ही होगा तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे फॉलो करके आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं कोई भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं तो आज बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इंटरव्यू को प्रिपेयर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी आ गई है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेज और वीडियो के थ्रू इंटरव्यूज होने वाली है वो एक ऑनलाइन इंटरव्यू एक अलग वे है तो दो तरह के इंटरव्यूज होने लगे हैं एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन तो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आर बीइंग कंडक्टेड नाउअडेज ऑनलाइन बिकॉज यहाँ पे इंटरव्यूअर को या किसी को भी कहीं मूव नहीं करना पड़ता सब अपने अपने घरों से या अपने अपने ऑफिस से इंटरव्यू ले पाते so this is a very important thing now you have to also ensure that you are able to join a session online through very good internet connection. You should have a very good internet connection, Wi-Fi available when you join an online interview. That is very important. So we will divide the interview in two parts. Before the interview and during the interview. So this is very important. And third part is also there after the interview. That I will tell you in the end. But most important is before the interview. Whenever you have an interview, what you should do. So if you have an interview on some day, so please ensure that on that day, if it is physical interview, ensure that on that day disturbances should be less or minimum. Through you call, do not
plan anything on that day because that interview is very important for you. Do not plan anything important, very important than this interview on the same day. For the online also, if you are online going to face an interview, if that time duration before 1 hour and after 1 hour, keep it very much clear, open. Means there should not be any disturbance before 1 hour and after the interview also for some time. Because maybe it may happen your interview will be rescheduled for 30 minutes or maybe delayed, maybe for some reason. So when you have an interview, keep 1 hour and keep out after after the interview means keep 2 hours with you before the interview and after the interview. So that is important. So do not plan anything in time or before or after your interview. And when you are going to attend an interview physically, keep that day intact at least by the evening 7 p.m. Do not plan anything that day. First. Second, very important thing is make your mind clear. If you are going to face an interview and if you want to crack it, first of all, your mindset should be very, very clear that I want to crack it. If you have any confusion that if it will not happen, I'll do anything or I want to do anything or this is okay or not, anything confusion will be there, you will not be able to confident in preparation and in the interview also. तो आपको जो भी इंटरव्यू फेस करना है जिस इंस्टीट्यूशन का जिस जॉब का पहले उसके लिए सरेंडर हो जाओ. If you have been selected for a job and you want it, उसके लिए पहले सरेंडर हो जाओ, माइंड से क्लियर हो जाओ कि now only and only one important task is to crack it and achieve this job. थोड़ा भी कंफ्यूजन आपको उस सिलेक्शन से बाहर कर सकता है. थोड़ा भी डाउट आपको वहां से बाहर कर सकता है. तो डाउट किल्स योर चांस. जहां डाउट आ गया आपका सिलेक्शन का चांस कम हो जाएगा. तो फर्स्ट प्रिपेयर योर माइंड फॉर इट. Prepare your mind that this is the interview I want to clear at any cost. Make your mind clear that this is the best job I have now and I want to take it. Make it very, very clear. जितना ज्यादा क्लैरिटी होगा उतना ज्यादा चांस होगा इस सेलेक्ट होने का. तो क्लैरिटी gives you success. So make it very, very clear to your mind that this is the best job I am going to achieve. जहां भी डाउट है चांसेस कम हो जाएंगे. जहां बिलीफ है, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, चांसेस बढ़ जाएंगे. गॉट इट? तो मेक इट वेरी, वेरी क्लियर. सेकंड, you should know about the institution very well. आप जिस भी इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई किए हो जॉब में या फिर वहां पे पढ़ने के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, जो भी इंटरव्यू जहां भी आप दे रहे हो उसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज रखिए. स्टडी कीजिए उसको. उसके वेबसाइट पे जाइए, उसके लिंक्स पे जाइए. ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या चाहता है,
उसके वैल्यूज क्या है, उस कंपनी के विजन मिशन क्या है, वो कंपनी कितने सालों से है, उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, वो कंपनी ग्रो हो रहा है कि नहीं, उस कंपनी का एक्चुअली कंडीशन क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। आपको उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना है, उस कंपनी को अच्छे से जानना है, या उस इंस्टीट्यूशन को अच्छे से जानना है, उसकी वैल्यूज समझनी है। आप जब इसको समझोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भरेगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस वेरी वेल। तो आपको उसके पूरे डिटेल्स को जानना है। आप उसको अच्छे से जानोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा, सिलेक्शन और सिलेक्शन के बाद भी। तो उसको अच्छे से समझो, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग मिस कर जाते हैं, वो कंपनी इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत ज्यादा डीप में समझते नहीं है और इंटरव्यू देने चले जाते हैं। और इंटरव्यूअर को कई बार ये फील होता है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि हमने उसके बारे में अच्छे से जाना नहीं है। तो ऑलवेज इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप इस कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, या इस जॉब के बारे में कितना जानते हैं। तो एक और पार्ट है, द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू आर गोइंग टू गेट। जिस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपने अप्लाई किया है, उस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप कितना समझते हैं, देन यू हैव टू रिसर्च ऑन इट। इसमें कितना क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, व्हाट आर द अंडरस्टैंडिंग्स आर रिक्वायर्ड, what are the things required for qualifying or for doing this job, what are the skills you need. So all the skills you should note, ये सब स्किल्स मुझे चाहिए इस जॉब को करने के लिए, और उस स्किल्स का बेसिक नॉलेज आप गेन कीजिए। सॉरी, उस स्किल्स का बेसिक नॉलेज आप गेन कीजिए, बिकॉज द क्वेश्चंस विल बी अराउंड द कंपनी एंड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू आर गोइंग टू गेट। नॉट इट, वही होगा। अब अगर आप यूपीएससी की इंटरव्यू में भी जा रहे हैं, तो यूपीएससी में एक आईएएस बनने जा रहे हैं, तो आईएएस के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में ही क्वेश्चंस होंगे। सिचुएशंस भी दिए जा सकते हैं, एंड हाउ यू विल फेस इट, हाउ you will respond on it. Got it? So this is very very important thing, knowing about your company, knowing about the jobs and responsibilities in that company, and most important, and another very important, if you know who is going to take your interview, the interviewers, अगर आप इंटरव्यूअर को जानते हैं, आपको इंटरव्यूअर के बारे में और डिटेल समझना पड़ेगा। अगर आपको पता है ये इंटरव्यू लेने जा रहा है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू गेट मोर नॉलेज अबाउट इट, स्टडी योर इंटरव्यूअर। वो कैसा है, वो कहाँ जॉब करता है, उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बिकॉज मैनी अ टाइम इंटरव्यूअर आस्क दिस क्वेश्चन व्हाट दे नो वेल। इंटरव्यूअर वही क्वेश्चन पूछता है जहां पे वो स्ट्रांग है। इंटरव्यूअर हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो अपने स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उसके आंसर्स को वो अच्छे से एनालाइज कर पाएगा, वो और डीप में जा पाएगा। तो इफ यू नो अबाउट इंटरव्यूअर and if you study them well, chances will be very much that you will be selected. You will be able to answer him very correct. तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कंपनी के बारे में जानना, दूसरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानना, और तीसरा इंटरव्यूअर्स के बारे में जानना।
अगर इंटरव्यूअर ऑलरेडी आईएएस है, आईपीएस है, तो डेफिनेटली यू कैन गेट मोर एंड मोर knowledge from social media somewhere else. How he behaves, how उन्होंने क्या क्या किया है, उनके बारे में बहुत कुछ आप अगर निकाल सकते हो, that will help you. And the fourth point is preparation. प्रिपरेशन कैसे करना है? प्रिपरेशन आपको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अराउंड ही करना है। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहे हो या एजुकेशन से रिलेटेड कोई कोई जॉब ज्वाइन करने चाह रहे हो या सरकारी नौकरी है, जो भी है, तो आपको एजुकेशन सेक्टर में उस स्टेट का या जहां भी है उसको डिटेल में नोट करना है, डिटेल अंडरस्टैंडिंग रखनी है। So you have to prepare before the interview. तो जाना नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं रखना है, बट इतना नॉलेज रखना है जितना जरूरी है, जितना जरूरी है। जैसे अगर कोई एजुकेशन सेक्टर में इंटरव्यू देने गया है, तो ही शुड नो कि क्या शिक्षा व्यवस्था है उस राज्य की, लिटरेसी परसेंटेज कितना है, इस तरह के डिटेल्स आपको निकालने होंगे, सारे गूगल्स में अवेलेबल है, तो वो गूगल से मिल जाएगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर दैट वे। जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने वाले हैं उसी के अराउंड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, क्वेश्चंस कहीं अलग से नहीं आने वाले। गॉट इट? तो प्रिपरेशन, दिस इज द होल पार्ट बिफोर इंटरव्यू। बिफोर इंटरव्यू, when you are going for an interview, again I am telling you, do not keep any distractions with you. आप अवॉइड कीजिए इवन बिफोर द कॉल, बिफोर द कॉल। वेरी गुड कीर्ति। या इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑल्सो। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है आपका आउटफिट। आपका आउटफिट, क्या कपड़े आप पहनते हो। बहुत प्रोफेशनल वे में आपको प्रिपेयर होना है। अगर आप बॉय हो तो शर्ट पैंट इज द बेस्ट। इवन गर्ल्स आर ऑल्सो, girls can also wear shirt pants nowadays, so that is one thing, or you can wear a suit also for girls. तो आपका आउटपुट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर ये ऑनलाइन इंटरव्यू है then also outfit is also important because they can see you, they can see you. So you can, you if you are, you can make up your beards if you are boy. Girls can also means clean their face or means how the preparation they can, because जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो लॉन्गर टिकता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन goes from your aesthetic, how you look. It's important. लोग कहते हैं मैं कैसा दिखता हूं ये मैटर नहीं करता, ये करता है। फर्स्ट मिनट में ही दे मे फील समथिंग डिफरेंट। अगर बाल ठीक से झड़े हुए नहीं है और फेस क्लीन नहीं लग रहा है, आईज मीन्स सो के उठे ऐसा लग रहा है कई बार, तो वो इम्पैक्ट डालता है। तो आउटफिट इज इंपॉर्टेंट। यू नीड टू बी वेरी क्लीन एंड लुक वेरी हैप्पियर, पॉजिटिव। इसलिए मैं बोल रहा हूं इंटरव्यू के आसपास आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं जिससे आप पॉजिटिव रहे, मोटिवेटेड रहे, एनर्जेटिक रहे।
और आपको अवॉइड करना है उन कॉल्स को, उन फ्रेंड्स को जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। गॉट इट? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जिस दिन अगर फिजिकल इंटरव्यू है, उस पूरे दिन उस तरह के बंदों से बात नहीं करना है। यू हैव टू अवॉइड दस पीपल डिस्ट्रैक्ट यू एटलीस्ट द डे। तो कोई भी अपॉइंटमेंट उस दिन नहीं रखना है, कोई भी मीटिंग्स ज्यादा नहीं रखना है, उस दिन अवॉइड करना है डिस्ट्रैक्शन को, क्योंकि जैसे ही आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन होगा, यू विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। माइंड में भी बहुत कुछ घूमता रहता है ना, माइंड में भी बहुत कुछ घूमता है, तो वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई हमें डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस करना है। आप इंटरव्यू से पहले फोन को ऑफ कर सकते हैं और एरोप्लेन मोड ऑन करके रख सकते हैं। एरोप्लेन मोड में चले जाइए सो दैट यू कैन प्रिपेयर। उस समय आपको जस्ट आपने जो कुछ नोट डाउन किया है पेपर में, उसको रिवाइज कर लीजिए, बट कीप योर मोबाइल ऑफ। कम से कम, कम से कम डिस्ट्रैक्शन, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन। जितना कम डिस्ट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन होगा। गॉट इट? क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके इंटरव्यू के टाइम में भी आपको कॉल आ जाएगा, अगर आप उससे पहले कोई कॉल अटेंड किए हो, उससे पहले कोई मैटर में बात किए हो सकता है इंटरव्यू के टाइम पे कॉल आ जाए। सो यू नीड टू कीप योर मोबाइल ऑफ सो दैट डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना। ऑल्सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू, देन ऑल्सो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके आसपास कोई ऐसा मोबाइल या दूसरा मोबाइल तो नहीं है जो इन बिटवीन रिंग होगा और आपको डिस्टर्ब करेगा। आपको अवॉइड करना है, अपने फैमिली मेंबर्स को बता देना है कि इस टाइम से इस टाइम तक प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। हाफ एन आवर पहले का और हाफ एन आवर तक का टाइम ले लेना है, ताकि आपको उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब ना करे। रूम बिल्कुल क्लीन, और जितना क्लीन होगा सारी चीजें, उतना क्लीन होगा माइंड। नथिंग, कुछ भी अपने आसपास नहीं रखना है, बस एक पेन और एक डायरी जिसमें आप नोट डाउन करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आए, पूछते रहिए, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप इंटरव्यू फेस करें, उससे पहले अगर आप 5 मिनट्स का डीप मेडिटेशन करें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। 5 मिनट के लिए आप पूरी तरीके से स्लीप मोड में चल जाइए, आंखें बंद के। कुछ नहीं, जो भी है सब टेंशन सारा खत्म कर देना है। स्लीप मोड में, काम मोड में चल जाइए, कूल काम रिलैक्स्ड हो जाइए पूरी तरीके से। अगर आप घर पे ऑनलाइन इंटरव्यू भी अटेंड करने वाले हैं, तो भी इंश्योर कीजिए कि आप इंटरव्यू से पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और हो सकता है अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो आप नहा धो ले। टेक अ बाथ बिफोर एन इंटरव्यू, that will give you a different level of performance, that will help you in a different level of performance। क्योंकि जब आप नहा लेते हो तो आप फ्रेश हो जाते हो, फिर से पुराने सारे थॉट्स पानी के साथ बह जाते हैं और आप मोर रिलैक्स होते हो, मोर एनर्जेटिक होते हो। तो जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू घर पे भी अटेंड करो, तो भी इंश्योर करो कि आप पूरी तरीके से फ्रेश फील करो। नहा लो तो बहुत बेस्ट है। अब तो गर्मियां आ रही है, तो आप नहा लो। और अगर जब भी आप फिजिकल इंटरव्यू भी देने जा रहे हो, तो अच्छे से फ्रेश होके, अच्छे से नहा के, शैम्पू वैम्पू सब करके अच्छे से नहाना है और अच्छे से ड्रेसअप होना है। ओके? ड्यूरिंग इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑल्सो आपको काम रहना है, रिलैक्स रहना है, और यू नीड टू लिसन मोर इन इंटरव्यू ऑल्सो। इंटरव्यू में आपको अच्छे से सुनना भी जरूरी है।
सुनो, अब क्वेश्चन को अच्छे से सुनो, लिसन, थिंक, देन रिस्पॉन्ड। अगर आप सुनने में गलती करोगे तो आप आंसर ठीक से नहीं सोच पाओगे और गलत जवाब होने का चांसेस बढ़ेगा। और अगर सुनोगे अच्छे से और अच्छे से एनालाइज करोगे, थिंक करोगे, तो आप बेस्ट आंसर कर पाओगे। तो लिसन, थिंक एंड रिस्पॉन्ड। यूज दिस। लिसन केयरफुली। जितना केयरफुली आप सुनोगे उतना इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन कम रहेगा, आप फ्रेश रहोगे, फ्रेश माइंड रहोगे, तो चांसेस कम रहेगा कि आप गलत सुनो या गलत एनालाइज करो। गलती के चांसेस रिड्यूस हो जाए। यू हैव टू लिसन केयरफुली, listen carefully, and then you have to respond. And even if you are not clear about the question, you can always ask again. Ask again, sir, please repeat the question. Because if you are not understanding the question, answer will not be accurate and will not be able to satisfy. Got it? You have to focus. Focus on helping your interviewer कि वो अपने उनको सही आंसर आपको देना है। तो कैसे देंगे? जब आप क्वेश्चन अच्छे से समझोगे। कई बार 90% टाइम में क्वेश्चन समझने में ही गलती होती है, आप क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाते। तो ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होना चाहिए ताकि आपको जवाब सही मिले, आपको समझ में आए वो क्या बोल रहे हैं, आप रिपीट करवा सकते हो। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। अब आप अगर इंटरव्यूअर के बारे में जानते हैं तो यहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। आप उनसे ज्यादा ओपन होकर के बात कर पाएंगे। यस सर, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, आपने इस तरीके से किया है। So when you do this, I will also tell you some questions जो रेगुलरली वो पूछते हैं। Got it? So first question most of them ask, why do you join this company? आप इस कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? Got it? तो जो आपने रिसर्च किया था इस कंपनी के बारे में, उस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, यहाँ वो काम आएगा, यहाँ वो काम आएगा। Got it? तो आपने अगर स्टडी किया है कंपनी के बारे में, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वहां मिलने वाली उसके बारे में, उसके साथ अपने टैलेंट को अलाइन कर दीजिए, अपने स्किल्स को, अपने स्ट्रेंथ्स को अलाइन करके आप रिप्लाई कर सकते हैं, सर आई नो दिस कंपनी इज very ethical company and people appreciate about it, and this is also faster growing company nowadays, and I am going to get a responsibility of this of sales, for example, and I am also good in this skills, so I want to utilize my skills, my knowledge for the growth of this company, and I know I will learn a lot in this company. That's why I want to join this. Got it? So you are concerned about the company, you know about the company, you know about your responsibility, and you are going to help the company to get faster growth. Got it? तो आप कंपनी को हेल्प करने जा रहे हैं और आप लर्निंग के लिए भी क्यूरियस है, आप लर्न भी करना चाहते हैं। तो जो लर्न करना चाहता है, जो सीखना चाहता है, उसको हमेशा आगे बढ़ाया जाता है। बड़े तो ये एक क्वेश्चन। अगेन दे कैन आस्क यू अनदर क्वेश्चन, इन 5 years वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ।
अगले 5 सालों में आप कहाँ पहुंचना चाहोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो अगर आप जानते हो कंपनी के बारे में, कंपनी का गोल क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जानते हैं, तो बस आपको कंपनी के गोल्स, विजन, मिशन मालूम है, वो कंपनी 5 साल में कहाँ जाना चाहती है, तो आप उसके साथ अपने आप को, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलाइन कर दीजिए, कंपनी के साथ अलाइन कर दीजिए। इन जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का गोल है कि वो 5 लाख स्टूडेंट को एग्जाम क्लियर कराए फॉर एग्जाम्पल, और आप उस कंपनी में एज अ टीचर ज्वाइन कर रहे हो, सो व्हाट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी, by the help of this company, by the help of this organization, I want to help so and so students, thousands of students in next 5 years to clear their exam. So I'm not going to take lakhs of people because the company is taking this, but I can contribute in this way, 1,000 students. So you need not to say मैं 5 साल में अपने आप को एमडी देखना चाहता हूँ, कंपनी का सीईओ देखना चाहता हूँ, मैं 5 साल में कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। ये सब चीजें नहीं चाहिए कंपनी को। कंपनी को चाहिए कि आप क्या वैल्यू क्रिएट कर देंगे 5 साल में। I will help so many people, I will try to get lots of sales for the company. Got it? At the same time जब आप अच्छा करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो यू शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट द फ्रूट्स। फल के बारे में बार बार बात नहीं करना है, प्रोसेस के बारे में बात करना है। यू नीड टू टॉक अबाउट द प्रोसेस कि स्टूडेंट्स को क्लियर कराना है या स्टूडेंट्स के पढ़ाना है, लाइफ चेंज करना है लोगों के, दैट यू हैव टू रिप्लाई। सो न्यू टेक्नोलॉजीज आएगी, न्यू टेक्नोलॉजीज में सपोर्ट कर पाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी में मैं अपनी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। इन 5 years I want to resolve so many public problems through your company, through AI and other things. Got it? So you have to not focus on what you will become, but the process. What you will become is in your mind. You need not to say the interview. इंटरव्यू को चाहिए कि आप कंपनी के लिए क्या करोगे 5 साल में। तो वो दे टेक इट फ्रॉम आउट। कुछ लोग बोलेंगे मैं एमडी बनना चाहता हूँ, मीन्स दे आर कमिंग फॉर देयर ओन ग्रोथ, दे आर नॉट फोकसिंग अबाउट द कंपनी ग्रोथ। सो दे थिंक, दे टेक इट कि क्या चाहता है। दैट्स व्हाई दे आस्क 5 साल में तुम क्या करोगे, कहाँ रहोगे। हो सकता है कि कोई बोले कि मैं 5 साल में कुछ बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, तो इट मीन्स दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द कंपनी, दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर सेल्फ, themselves more. Got it? So this is the some questions what they can ask. They can ask about your strength. So आपको पता है आपके क्या strength है, so you can also always tell about your strength, but you also need to make them clear कि आप इसमें और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, यू आर टेकिंग मोर एक्शन टू इम्प्रूव इट। स्ट्रेंथ ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये मेरा बेस्ट है और इसके मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, माई राइटिंग स्किल इज वेरी गुड and I can write good mails and I am still improving it, working on it. सर और कोई नहीं आया सेशन में? हाँ, आज सेशन में नहीं आया है। यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट लेकर के अगर आप ग्रुप में डाल सकते हो तो डाल दो, सेशन गोइंग ऑन, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन और अगर जो ज्वाइन करेगा उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट of this and
अब डाल दो, मैं भी देखता हूँ अगर मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ तो। ओके, नहीं हो रहा है, मेरे फोन से नहीं हो रहा है। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर what company asks, what company wants, where company want to go, है ना? तो जब स्ट्रेंथ के बारे में आया तो स्ट्रेंथ उस तरीके से बोलना है जो स्किल्स और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसके अराउंड आपके स्ट्रेंथ है कि नहीं। जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई है उनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें आप स्ट्रॉन्गर होंगे, तो यू हैव टू हाईलाइट इट, यू हैव टू हाईलाइट इट। इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो इंटरव्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को एक बेस्ट कैंडिडेट के रूप में वहां दिखा पाए। ओके ओके, स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट 1 सेकेंड, फोन खींच, फोटो खींच लेता हूं मैं। आपका चैट आ रहा है वो मैं हटा देता हूँ। गॉट इट। तो आपको ध्यान देना है, अपने स्ट्रेंथ को अलाइन कर लेना है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से। आप में जो स्ट्रेंथ है दैट इज व्हाट आर दिस स्ट्रेंथ। ओके, एंड जब आपके स्ट्रेंथ आपने क्लियर कर दिए, हो सकता है सवाल है व्हाट डू यू थिंक व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो व्हेन दे आस्क अबाउट योर वीकनेसेस, अगेन take it in a different way. For example, you can say like this: I take time in taking decisions. I analyze in very detail. I go in very deep in details. I study a lot. I research a lot. I take a lot of data. Then I take decision. So sometimes I take decision very late. That is my weakness. When you are saying this, कि I take decision slowly or late, at the same time they are getting that you analyze the things, you take data, you understand the importance of a decision. Got it? You are telling this is your weaknesses, but they will feel that this is also an strength point, strong point. That you are taking delay decisions, but you ensure that decision should be good. Got it? So you can say like that कि मुझे डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है। Got it? So that is one, that is the thing you can say. Okay? Uh, yes. So that is also that you can say कि sometimes I do not take decision, so that is my weakness. तो वो हो सकता है, वो उनको लग सकता है, दे विल फील हाँ वीकनेस तो है बट डिसीजन तो हम लोग ही लेंगे। सो दे विल फील द डिसीजन लेने में डिले करता है, कोई बात नहीं, डिसीजन तो हम लोग ही ले लेंगे। एनालाइज करके डिसीजन डेटा तो निकाल सकते हैं। तो दैट इज अ विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशंस लाना है, विन विन सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल यू कैन आल्सो से दैट आई मीन्स take decision faster in a different way, opposite way.
आई टेक डिसीजन इन अ फास्टर वे बिकॉज आई फील कि सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है कि मीन्स बाद में रिग्रेट हो. सो दैट इज माई वीकनेस. आई वुड लाइक टू इम्प्रूव इट. तो इस तरीके से आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है. हम्म. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वो ऐसे पूछ सकते हैं जैसे कि लास्ट जॉब में आप क्यों छोड़ रहे हो. लास्ट जॉब आपको क्यों आप छोड़ रहे हो. तो ये इस तरह का जब आप जॉब में होते हो तो पूछ सकते हैं. तो उस समय आपको बहुत क्लेवरली और अंडरस्टैंडिंग वे में ट्रांसपेरेंटली भी थोड़ा बताना है कि आई वॉज इन दैट जॉब फॉर 3-4 years and I was not feeling that I am able to contribute here. Lots of restrictions were there. So I want, so I can add lots of values. That's why I want to change. Or maybe you can say that in that job, I got bored. A little bit, I am getting bored over there. So I want a change because I want to take more responsibilities. I want to contribute more. So that's why I want to just change these things. And there it was a little bit difficult. I was facing difficulties in changing the responsibilities and all these things. So that you can explain कि क्यों आप जॉब चेंज कर रहे हो, है ना, या फिर क्यों आप इस जगह आना चाहते हो. कोई अगर इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हो तो क्यों वहां आना चाहते हो. Again, the same, you have to align the mission vision of the company or the institutions, and you have to also align the roles and responsibilities or things you are going to get, or the courses about where what you are going to do. हम्म. तो जब भी आपको सवाल मिले यू नीड टू लिसन इट केयरफुली. जो जितने अच्छे से सुनेगा वो अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा और वो डिलीवर कर पाएगा. थिंक एंड रिस्पॉन्ड. जरूरी नहीं है कि आप इमीडिएट रिस्पॉन्ड करो. ओके ओके, नो इशू. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको रिस्पॉन्ड करो. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू एंड. जब जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है, सो दे से यस दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, देन यू कैन, they can also say sometimes, do you want to ask some question. So they can also say some question. They can also say you that आपको कुछ पूछना है, do you want to ask some questions. So you can ask about the locations. अगर जानना चाहते हैं तो लोकेशंस, क्योंकि जैसे आप लोकेशन के बारे में पूछेंगे दे विल अगेन आस्क कि आर यू कंसर्न्ड अबाउट इट, आर यू कंफर्टेबल इन ज्वाइनिंग दिस लोकेशन. Alright, so that location, working time, working hours, you can ask about all these things just to show your curiosity about the job. Yes, I am interested. I am interested a lot. तो आपको कुछ छोटे मोटे सवाल पूछने हैं. वर्किंग आवर्स कैसे हैं यहाँ पे, डे शिफ्ट्स कैसे होते हैं, A B C शिफ्ट होते हैं या जनरल शिफ्ट होते हैं. जस्ट simple these questions you can ask so that they will feel, yeah, you are very interested and curious about this job. Got it. And you need to very politely say thanks, and say thanks with saying like this: thank you very much, sir, for giving me this opportunity to connect with you all. Hope we will be meeting again. So what you have done, you have thanked them, you are grateful to them, and at the same time you are showing the hope, putting a hope into their mind.
कि हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे। तो देर विल बी चांसेस कि दे विल थिंक के हम लोग मिल पाएंगे कि नहीं। So how they will meet you, because when they will select you, got it? So that seed you are again putting to them. Ki I will, we hope we will meet again. Hope is very important thing. Hope is very important. You hope, they hope, and then the things happen. So you can also thank them. This great interview I faced. Thank you, sir, this opportunity. Got it? So just to summarize it in a faster way, for some people who join late, one thing, before interview, before interview, you need to just take time to see the calendar, date, and keep distraction away on those dates or timings. Keep distractions away. उस दिन कोई प्लान नहीं करना है, कोई कॉल्स ज्यादा नहीं लेने हैं, कोई ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं करना है, कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं रहना है। फैमिली मेंबर्स को सबको बता के रखना है दिस डे आई एम busy, because that is very important. So that one thing, you need to clear your mind that this is very important interview. This is very important interview. Clarity gives you success, and doubt takes your success. Doubts kills your success. So don't be doubtful, be clear about it. Second is knowing about the company, knowing about the area where you are going to join. You have to have knowledge about it. मिशन, विजन, डिटेल्स अबाउट द कंपनी, कब ये कंपनी बनी थी, कितने सालों से चल रही है, कितना ग्रोथ हो रहा है, कैसे चल रही है, ये उनके वेबसाइट्स में ही सारी डिटेल्स मिल जाते हैं, वो रखना है। सेकेंड इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मिलने वाली है उसके बारे में जानकारी रखना है। और अगर आप जान पाओ कौन इंटरव्यू लेने वाला है तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला है अगर आप उसके बारे में थोड़ा जान लेते हो इट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। आपको समझ आएगा कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, ये आपको क्लैरिटी होगी। गॉट इट? तो ये है, टाइम डेट्स फिक्स रखना है, मतलब माइंड में रखना है, उसके अराउंड डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है, कूल एंड काम होना है। बिफोर इंटरव्यू, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको फ्रेश होना है, नहा लेना है, फ्रेश हो जाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, प्रोफेशनल फील करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने के लिए फेस पे काम करना है, जो भी करना है सारा चीज क्लियर रखना है। व्हाट इज देन, आपको फ्रेश रहना है, फ्रेश माइंड से रहना है।
So you have to be very, very fresh, clear before the interview. Keep mobile off. All the things which can distract you should keep away or eliminate. जो भी चीजें आपको डिस्टर्ब करती है उनको हटा दो उस समय के लिए, ताकि आपके इंटरव्यू में कोई इम्पैक्ट ना हो। गॉट इट? ड्यूरिंग द इंटरव्यू जैसे आप फ्रेश होके आए हो तो आपको काम रहना है, कूल रहना है और केयरफुली क्वेश्चंस को सुनना है, तभी जवाब देना है। क्वेश्चंस को सुनने में गलती करेंगे तो पूरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। क्वेश्चंस को सुनना है, समझना है, जरूरत पड़े तो रिपीट करवाना है, ठीक से समझ के फिर उसके बाद उसको जवाब देना है। हो सकता है कि जब आप रिपीट करवाओ उस समय आप अपने दिमाग में आंसर को रियलाइज कर लो, अंडरस्टैंड कर लो। गॉट इट? बट इंटरव्यू अगर ऑनलाइन है तो वाईफाई कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ताकि आवाज डिस्ट्रैक्ट ना हो, माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, चीजें कट कट के ना आए। गॉट इट? तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डू यू know about this organization, what do you know about the roles and responsibilities you are going to get it। so ये सारी चीजें प्रिपरेशन में हो जानी चाहिए, ताकि यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा उतने अच्छे कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंस होगी उतने अच्छे आपके आंसर्स होंगे। तो प्रिपरेशन पे फोकस करना है, बेसिक चीजें अंडरस्टैंड करनी है, केयरफुली लिसन करना है, और अगर कुछ क्वेश्चंस आए जहां आपको लग रहा है कि आपको नहीं आता है तो ट्रांसपेरेंटली बोलना है कि इस क्वेश्चन का या इस चीज के बारे में मैं नहीं जानता। ट्रांसपेरेंटली, ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बना बना के कुछ कुछ बोलना ये सब थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कराता है, उनका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन गो, दे कैन आस्क सम डिफरेंट क्वेश्चंस ऑल्सो, है ना। सो ये फील नहीं करना है कि आपने एक दो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो इंटरव्यू खराब हो जाएगा। अच्छे कुछ क्वेश्चंस का अच्छा आंसर दिया तो इंटरव्यू अच्छा होगा। ऑडिट, ये चीजें हैं। अब जब सेशन जब एंड हो तो बहुत स्माइलिंग वे में, ग्रेटफुल वे में उनको थैंक यू बोलना है। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज, होप वी विल मीट अगेन। if you will thank them and also give a hope, or also show a hope that this will go good and we will meet again, so there will be more chances। तो आपको बस सारी चीजें ऐसे रखनी है कि आपको चांसेस हर चीज में ज्यादा ही हो। तो स्कोर डिसाइड होता है इंटरव्यू का भी, तो स्कोर आपके बेटर होंगे क्योंकि चांसेस आपके बेटर है, तो सिलेक्शन का चांसेस होगा। व्हाट इट? So these are very important things whatever I wanted to discuss with you all। इसी तरीके से अगर आप और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे कोर्स ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे दिया हुआ जो लिंक है, जो ऐप का लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे ये सारे रिकॉर्डिंग्स और कोर्सेज आपको मिलेंगे, जहां पे आप अपने आप को बेटर बना सकते हैं, एक बेटर वर्जन बना सकते हैं। योर पर्सनालिटी विल improve, the way you speak, your public speaking will improve, and definitely जैसा आप बोलोगे वैसा आप पाओगे। जो अच्छा बोलेगा वही किस्मत खोलेगा। Got it? So this is the very important sessions, and I hope you got the inputs. Whatever questions you have, you can ask in comments or chat in my group in our app also। तो अपने हमारे ऐप में भी आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।